Good morning, students. Today we are going to start the next chapter of social and political life. That is chapter number 4, role of the state government, healthcare. So in this chapter we are going to study about directive principles of state policy, public healthcare services, private healthcare services, and also about govern functions of the state government, that is land reforms, education and right to education. Today we are going to study about directive principles of a state policy and also about public healthcare services. The state government is responsible for looking after the welfare of the people living in the state and providing the basic facilities to them. The people of a state have several needs. The state government prioritizes its activities on the basis of the need, time and resources available. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के वेलफेयर, जो भी लोग स्टेट में रह रहे हैं उनके वेलफेयर को देखने के लिए और साथ ही साथ उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। हर स्टेट के लोगों की कुछ सेवर नीड्स होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटाइज़ करती है, मीन्स एक क्राइटेरिया सेट करती है एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कि उनकी नीड क्या होगी, टाइम क्या किस टाइम पे क्या नीड होगी और किस तरीके की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, Directive Principles of a State Policy. So, the Constitution of India has provided certain guidelines for framing laws for the central and the state governments. So, these guidelines are called Directive Principles of State Policy. If followed, they will promote social welfare by improving the social and economic life of the people. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री इंडिया का, उसने कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दी हैं लॉ को फ्रेम करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। इन्हीं गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। अगर इन्हें फॉलो किया जाता है तो ये प्रमोट करती हैं सोशल वेलफेयर, जिससे क्या होता है, क्या करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक इम्प्रूवमेंट लाती है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो लोगों की हैं उनमें। हाउ एवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ओनली गाइडलाइंस and are not enforceable. This means nobody can legally complain if a government does not implement any of the directive principles. At the same time, while making laws, the state should not take into account the directive principles. However, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गाइडलाइंस होती है और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को फोर्स करके जो है उनको यूज़ करना ही ज़रूरी है। इसका मतलब है कि मतलब लीगली जो है कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता अगर गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। और ये भी है कि जब भी कोई लॉ बनता है तो क्या नाम है, उस टाइम पे गवर्नमेंट को जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक बार देखना होता है। ठीक है, ऐसा एक प्रोसीजर है। Some directive principles of a state policy are: first is to secure to all its citizens an adequate means of livelihood, to make all material resource available to the common people, to ensure that both men and women get equal pay for equal work, to secure the right to work, education, and public assistance to the unemployed, aged, sick, and disabled, to provide maternity relief to working women, to prevent child abuse and exploitation of workers, to promote cottage industries in the rural areas, to improve public health facilities and enhance the standard of nutrition of the people. कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, वो क्या हैं, सिक्योर करना कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड को सपोर्ट करें। ठीक है, वो सिक्योर हो, और जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें कॉमन लोगों के लिए अवेलेबल किया जाए। ये इंश्योर किया जाए कि बोथ जो मेन और वीमेन हैं दोनों को इक्वल काम के लिए इक्वल पैसा मिले। ये सिक्योर किया जाए जो राइट टू वर्क है, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस है वो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो एजेड है और सिक और डिसेबल्ड है उन्हें भी दिया जाए। मैटरनिटी रिलीफ मिले जो वर्किंग वुमेन है उन्हें, जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसको रोका जाए और जो एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स का उसे भी रोका जाए। प्रमोट किया जाए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज़ में। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड है न्यूट्रिशन का उसको एनहांस किया जाए। Healthcare in India is the responsibility of every state. Clean drinking water, good sanitation, hygiene, and a pollution-free as well as stress-free environment are factors that contribute towards good health. Healthcare जो है इंडिया में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर स्टेट की। साफ़ पीने का पानी,
और साफ़ सुथरी जगह मीन सैनिटाइजेशन करना, हाइजीन रखना, एक पॉल्यूशन फ्री और साथ ही साथ एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जो कि एक अच्छी हेल्थ के तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अंडरटेक करती है बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो कि पब्लिक हेल्थ को देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हेल्प लेती है एनजीओज़ की, जिसका फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेती है स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि प्रमोट होती है पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है वो जॉइंटली शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों शेयर करते हैं इसको। One of the ministries in each state government is the Ministry of Health and Family Welfare, which plans and implements the various public health care programs in a state. Generally, the health minister is in charge of the department. So, what are the various steps that the state government takes to improve public health? So, basically, जितनी भी जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं हर स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें से एक जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की होती है, जो कि प्लान और इम्प्लीमेंट करती है डिफरेंट जो है पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो भी उस स्टेट में हो रहे होते हैं। जनरली इसका जो इंचार्ज होता है इस डिपार्टमेंट के, वो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। सो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? वन बाय वन चलिए उसको पढ़ लेते हैं। The state government runs healthcare centers, dispensaries and hospitals in the rural and urban areas free of cost or at low rates. The government spreads awareness about hygienic living and nutritional diet plan through various media campaigns. The state government trains health workers and prepares health plans for every village. It conducts mass immunization programs free of cost. It tries to control the spread of communicable diseases by spreading awareness and providing free drinking water and sanitation facilities. Each state implements the policies of the National Rural Health Mission (NRHM) to improve healthcare facilities of the people. NHRM conducts special programs to improve the health of newborn babies and their mothers to reduce infant as well as maternal mortality rates. सो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रन करती है हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स को रूरल और अर्बन एरियाज़ में, जो कि फ्री और ऑफ कॉस्ट होते हैं या फिर लो रेट्स पे होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्प्रेड करती है अवेयरनेस हाइजीनिक लिविंग और न्यूट्रिशनल डाइट प्लान के बारे में डिफरेंट मीडिया कैंपेन्स के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रेन करती है हेल्थ वर्कर को और प्रिपेयर करती है हेल्थ प्लान हर विलेज के लिए, और मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को जो है कंडक्ट कराती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ये ट्राई करती है कंट्रोल करना जो कि स्प्रेड होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ का बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा तो उसके लिए जो है अवेयरनेस स्प्रेड करके और फ्री ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हर स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ जो कि है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की NRHM की, जो कि इम्प्रूव करता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लोगों के लिए। NHRM जो है वो कंडक्ट कराता है स्पेशल प्रोग्राम, जिससे कि जो हेल्थ होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ की वो इम्प्रूव होती है, उनके मदर्स की हेल्थ इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ जो इन्फेंट मीन्स जो एकदम छोटा बच्चा नवजात शिशु जो होते हैं उनकी जो मैटरनल मतलब पैदा होने के बाद जो मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट होता है, जिसकी वजह से जब उसकी हेल्थ पे ध्यान का केयर होती है तो वो रेट जो है वो घट जाता है। Public health care services. At every village there is a primary health care center with trained doctors, nurses and basic facilities. There are village health and sanitation samitis consisting of panchayat members and other volunteers in villages with a population over 1,000 people. These samitis get grants from the government for carrying out household surveys, preparing village health camps, sanitation drives, regular cleaning and internal painting of reservoirs. In addition, accredited social health activists, which is also known as ASHAs, also work to promote awareness about basic healthcare issue. The state government runs hospitals at every district. There are government hospitals in cities as well, some of them specializing in a particular ailment such as cancer. In case of serious illness, some people from villages travel to urban areas for more specialized medical facilities. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर विलेज में जो है आपकी एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होती है, जिसमें ट्रेन डॉक्टर, नर्स और एक कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो है विलेज हेल्थ और सैनिटेशन समितिज़ होती हैं वहाँ पे, और जिसमें क्या होता है पंचायत के मेंबर्स होते हैं और कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, और विलेज जो भी
विलेज जिसकी पॉपुलेशन जो है 1000 लोगों के आसपास है, वहाँ पे विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समिति होती है। इन समिति में जो है इनको ग्रांट मिला होता है गवर्नमेंट से, जिससे कि वो हाउस होल्ड सर्वे या फिर जो भी अगर विलेज हेल्थ कैंप है उसको प्रिपेयर कराना, सैनिटेशन ड्राइव चलाना, रेगुलर क्लीनिंग और इंटरनल पेंटिंग जो होती है रिजर्वायर्स की, ये सारी चीज़ें कराना इनका काम होता है। इसके साथ ही साथ जो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट मतलब आशास जो होती हैं ये भी वर्क करती हैं, जो कि प्रमोट करती हैं अवेयरनेस को बेसिक हेल्थ केयर इशूज़ से रिगार्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रन करता है हॉस्पिटल्स हर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं सिटीज़ में, और साथ ही साथ जो है कुछ स्पेशलाइजिंग जो है पार्टिकुलर एलिमेंट जैसे कि कैंसर है उसके लिए जो है स्पेशल इंस्टीट्यूट होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस है तो लोग जो है गांव से ट्रैवल करके फिर अर्बन एरियाज़ में आते हैं ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। That's it for today's class. Thank you.